Hello everyone and welcome to Self Study. Today we'll be studying about spherical mirrors, part 2 of the chapter Light, Reflection and Refraction. This is presented by me, Arzu Pundir. So let's begin with it. So, spherical mirrors, in the last part of this chapter, we studied about reflection, which is caused by shiny surfaces, and most commonly, which we use, that is a mirror. Now, what are spherical mirrors? So, spherical mirror basically एक curved part होता है किसी sphere का. Supposedly, I say that this is a sphere. Now, out of this sphere, if I tend to cut out this part of it, okay, and then I get this curved surface. So it is a spherical mirror. Now this, we say that this spherical mirror was a part of this sphere. Let's call this sphere as A. So now accordingly, the spherical mirror is of two types. One is concave and the other one is convex. So when the this part, the cave like part of the mirror is the reflecting side, मतलब इस साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. जब मिरर ऐसा होता है तो वो कॉनकेव होता है. इट इज इजी टू रिमेम्बर कि जब वो केव की तरह जो साइड है उसकी इस तरीके से, जब ये एक रिफ्लेक्टिंग साइड की तरह काम कर रही है तो कॉनकेव है. एंड व्हेन दिस बल्जिंग साइड जो बाहर की तरफ है, this side act as the reflecting side, then at that time it is a convex mirror. So these are two types of mirror, that is concave mirror and a convex mirror. And what is a spherical mirror? A curved mirror which appears to be a part of a sphere. अगर मैं एक ऐसे एक mirror लेती हूँ which is a curved mirror, so obviously it appears to that it is coming out of some sphere, उसमें से हमने काट के इसको बनाया है. Now there are some terminologies which is related to this complete spherical mirrors. So the first one of them is center of curvature. So now let's understand what is the center of curvature. If this is the sphere of which we think that our spherical mirror is the part, मतलब जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो spherical mirror है वो किसका, एक पर्टिकुलर जो स्फीयर है उसका पार्ट होगा. तो ये जो स्फीयर है जिसका ये हमारा जो मिरर है वो पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर हो, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. सिंपल, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन ओवर हियर कि हमारा जो मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट अपीयर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उस पर्टिकुलर स्फीयर का जो सेंटर होगा वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट कम्स द पोल. नाउ व्हाट इज दिस पोल? इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा. ये स्फीयर तो एक इमेजिनरी स्फीयर था, जो बेसिकली हमारे पास है वो ये स्फेरिकल मिरर होता है. तो इस पूरे मिरर का यहां से यहां तक जो ये है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा, दिस इज नोन एज द पोल ऑफ दैट spherical mirror. Now
The second thing, the other thing which comes is the radius of curvature. So radius of curvature, it is the radius of the sphere of which the spherical mirror is a part. Again we come to this imaginary sphere. इस स्फेयर का जो रेडियस होगा, यहां से यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है, that is from the center to the outer rim, that is known as the radius of curvature. Now we have three terminologies with us. First one is center of curvature. वो क्या था? उस imaginary sphere का जिसका हमारा spherical mirror part है, उसका जो center होगा वो है center of curvature. Then comes the pole. ये पोल जो है वो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जो हमारा मिरर है, उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जो इस इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर के जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस. हमने अभी दो चीजें देखी जिसमें एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक था पोल. तो इफ दिस इज आर स्फेरिकल मिरर, ये हमारा पोल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो इस पोल से जोड़ती हुई लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. सो दिस लाइन PC is known as the principal axis. Another point is the focus. So focus is a point on this principal axis. वो इस principal axis पर एक point होता है जिसमें क्या है कि कॉन्केव मिरर में जो जितनी भी हमारी रे ऑफ लाइट आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. वो सारी रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी. द पैरेलल रेज विच आर कमिंग, द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर सारी रेज जो है मीट करती हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. दैट इज नोन एज द फोकस. बट इन कॉन्वेक्स मिरर इनमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज थोड़ी अलग होती है एंड दैट इज कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो इस पर आकर जब गिरती हैं, सो दे डाइवर्ज फ्रॉम हियर. ओके, सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारी लाइट रे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो रही हैं. तो अब क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से तो आप हमें डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे यहां से, सो दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट. ऐसा लगेगा देखने में कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं. तो इसमें क्या है कि एक इमेजिनरी पॉइंट होता है फोकस. यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें एक्चुअली मीट नहीं करती. हम जो डाइवर्ज हो जाती हैं वो जब, तो उन्हें पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करके एक फोकस जो है उसका उसको कैलकुलेट करते हैं. So this is a difference between concave mirror and convex mirror. Another difference was जब हमने जो center of curvature देखा था, तो जो एक concave mirror होता है, supposedly it is a concave mirror, तो ये जो sphere है तो इसका center of curvature यहाँ होगा, मतलब inside the spherical mirror, इसके अंदर की तरफ आ रहा है. लेकिन जब हम बात करते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका ये साइड नहीं बल्कि ये दिस साइड इज द साइड विच इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, तो इसके लिए तो यहां पर सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका वो आउटसाइड लाई करता है. सो वी से दैट इन अ कॉन्केव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इनसाइड एंड इन अ कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज आउटसाइड.
So this is one difference. Another difference is in a concave mirror, the ray of light, they converge after reflection, है ना, ये कन्वर्ज हो रही हैं. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो जब रे ऑफ लाइट आकर पड़ती है तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है. क्योंकि कॉन्केव मिरर में कन्वर्ज होती हैं तो वो अपने आप मीट करती हैं एट द प्रिंसिपल एक्सिस, but in a convex mirror they diverge, so they appear to meet at the principal axis. Now we talk about focal length. So the distance between the focus and the pole is known as the focal length. Now again, if this is the mirror, this is the pole, this was our radius of curvature up till C, और यहाँ पर focal length, यहाँ पर आकर अगर वो मिलती हैं जो lines हैं, so this is known as the focal length, PF. Next thing is aperture. So the diameter of the reflecting surface. Again, जब भी हम reflecting surface की बात करते हैं particularly, तो वो सिर्फ हमारा जो mirror है वही है. तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो पूरा ये diameter है इस mirror का, उसको हम कहते हैं aperture. If I say it is from M to N, so this MN is the aperture of this particular spherical mirror. Now if we see a spoon, तो एक जो स्पून होती है वो दोनों तरीके से एक्ट करती है. सो इन अ स्पून, द साइड with which we eat, in which we keep our food, that acts as a concave mirror. वो शाइनी होती है. और जो bulging out part होता है उसका, वो एक convex mirror की तरह एक्ट करता है. Thank you for watching. Please subscribe the channel if you haven't till now. If you have liked the video, please hit the like button, share it with your friends, and hit the notification bell icon so that you can get the notification of the other video as soon as it is released.